Assalamualaikum students of class 8. How are you? Fine. I hope you all are doing amazingly good in your studies. Good. Okay. So students, yesterday we learned about type of factorization and then cube, how to find cube of a given polynomial. So today our topic is solution of simultaneous linear equations. Okay. Solution of simultaneous linear equations. What are simultaneous linear equations? Okay, leave this. Tell me what are linear equations? Equations having degree 1. For example, जिनके पास आपके वेरिएबल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी? 1. Equations having degree 1 are known as linear equations. Okay? In this equation, this is equation? No, this is not equation. This is an expression. But now this is an equation. Okay? So in this equation, the degree of variables are 1. That's why this is linear equation. Okay. Now, these two pair of linear equations are known as simultaneous linear equations if we solve them simultaneously. Simultaneously का मतलब होता है एक साथ उनको सॉल्व करना. ठीक है, हमारे पास एक कपल होगा linear equations का और उसको हमने एक साथ सॉल्व करना है. There are three methods of solving linear equations simultaneously. First of them is equating the coefficients. So by equating the coefficients, today we will solve our simultaneous linear equation. Through this example, I will equating the coefficients. Okay. Through this example, I will explain you what is the method of equating coefficients. Okay. Equating the coefficient. Okay. So I am writing the first example on the board and then I will tell you what is the method of equating coefficients. Okay students? Okay, by equating the coefficient, first example is 2x plus 5y. 2x plus 5y is equal to minus 1 and the second equation is x minus 2y is equal to 4. X minus 2y is equal to 4. This is your first equation and this is your second equation and we have to solve them simultaneously. Simultaneously का मतलब ये है कि एक साथ इनको solve करना है. And solve करने का मतलब क्या है कि जो हमारी equations में unknown है हमने उनको find out करना है. Okay. So solution में आपने लिखना है this is your first equation. First of all name the equations. This is your second equation. Okay. यहाँ पे इक्वेशंस को लिखें 2x plus 5y is equal to minus 1 and x minus 2y is equal to 4. Okay. अब what is the next step? Equating the coefficient का मतलब क्या है कि आपकी जो इक्वेशंस में कोफिशिएंट है आपने उनको सेम करना है. फॉर एग्जाम्पल x का कोफिशिएंट क्या है 2 and y है कोफिशिएंट 5. And in this equation, coefficient of y is 2 and coefficient of x is 1. Okay. So our purpose is to make the coefficient same. Whether हम x के coefficient को same बना लें और या फिर हम y के coefficients को same बना लें. But it's easy कि आप अगर जो coefficient 1 वाले हैं जिनका coefficient पहले 1 है उनको अगर आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके सेम इजीली बन जाएंगे. ओके. Here the coefficient of x is 2 and I want to make the coefficient of this equation is also 2 to make same. Equating the coefficient में आपने coefficients को same बनाना है. ठीक है, यहाँ आपके पास 2x है तो हम यहाँ भी 2x बनाएंगे और अगर y के coefficients को same बनाना है तो यहाँ 5y है तो आप यहाँ भी 5y बनाएंगे. ओके. सो अब हम 5y को तो 2y को 5y बना सकते हैं. यस, बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 5 and it with 2. इसमें हमें
इसको लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स मल्टीप्लाई होंगी। ओके, लिखे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विथ, किससे मल्टीप्लाई किया आपने? 2 से। ओके, सो it will become 2x minus, as it is 2 into 2 times 4y is equal to 4 2 times 8, and say this is equation 3. Okay, this is your equation 1, this is equation 2 and this is equation 3. अब जिस इक्वेशन को आपने चेंज किया है, जिसके कोफिशिएंट आपने सेम बनाया, उसको छोड़ दें। अब जो आपके पास न्यू इक्वेशन आई है, हमने उसके साथ वर्किंग करनी है। ओके, equation 1 and equation 3. Okay, I am writing here 2x plus 5y is equal to minus 1 and 2x minus 4y is equal to 8. Okay, अब आपने क्या करना है? इन इक्वेशंस को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है टू इलिमिनेट एनी कोफिशिएंट, एनी वेरिएबल। अब यहाँ देखें, अगर आप हमेशा जिस कोफिशिएंट को हम सेम बनाते हैं उसी को एलिमिनेट करते हैं। अब यहाँ हमने किसको सेम बनाया है? 2x, x के कोफिशिएंट्स को सेम बनाया, तो इसका मतलब यह है कि हम यहाँ से किसको एलिमिनेट कर देंगे? x को। और x को कैसे एलिमिनेट करेंगे? यहाँ भी x विद पॉजिटिव साइन, यहाँ भी x पॉजिटिव साइन है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4x। लेकिन अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 minus 2 क्या आ जाएगा? 0। 0x मीन्स x एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया। सो यहां आप लिखें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 3। ओके, इक्वेशन 1 इज दिस एंड इक्वेशन 3 इज दिस। और जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू ऑल नो द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन कि द साइंस आर चेंज। ओके, साइंस आपकी चेंज हो जाएंगे। ये प्लस साइन है, ये किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। और यहाँ ये माइनस साइन है, ये किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में। और इसका साइन भी प्लस है, ये क्या हो जाएगा? माइनस। सो 2x minus 2x cutting 5 plus 4 is 9y is equal to minus 1 minus 8 is minus 9. 9y is equal to minus 9. Now y is equal to minus 9 over 9 which is equal to 1 minus 1. अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। You can put the value of y in any 3 equations, किसी भी तीनों इक्वेशंस में से आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें and you will get the value of x. Okay, tell me in which equation I will put? जी, I am going to put in it in equation 1. So put it in equation 1. What is equation 1? 2x plus 5y is equal to minus 1. And what is y? y की वैल्यू को आपने पुट कर दिया। 2x plus 5 into minus 1 is equal to minus 1. अब मैं यहां कर रही हूं, देखें 2x 5 into 1 is minus 5 is equal to minus 1. अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो 5 will shift toward left side, right side. 2x is equal to minus 1 plus 5. 2x is equal to 4 and x is equal to 4 by 2 which is equal to 2. So the value of x is 2 and the value of y is minus 1. This is the method of equating coefficients. क्या किया है मैंने? सबसे पहले इक्वेशंस को फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? मेक द कोफिशिएंट सेम वेदर द वैल्यू ऑफ x और द y. ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है, आप x के कोफिशिएंट्स को सेम बना लें या फिर आप y के कोफिशिएंट्स को सेम बना लें। सेकेंड स्टेप आपने क्या किया? जब मल्टीप्लाई करके सेम बना लिया तो अब आपने देखना है कि कौन सा ऑपरेशन हम इस पे अप्लाई करें। ठीक है, which operation will we perform to eliminate the coefficient which we have made same? जो coefficient आपने सेम बनाया है, आपने देखना है कि वो ऐड करने से, उन दो इक्वेशंस को ऐड करने से
वो इलिमिनेट हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है, जीरो हो रहा है, या फिर सब्ट्रैक्ट करने से, ठीक है। उसके बाद आपने उसके अकॉर्डिंगली ऑपरेशन परफॉर्म कर देना है। नेक्स्ट आपके पास जब x खत्म हो जाएगा तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, और उस y की वैल्यू को आपने कैलकुलेट कर लेना है बाय डूइंग प्रॉपर स्टेप्स, ओके। उसके बाद आपने उस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना है। 3 इक्वेशंस आपके पास बनेंगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। मोस्टली किसी में 4 भी बन जाएंगी। आपने क्या करना है कि उस y की वैल्यू को पुट कर देना है और उसको सिंप्लीफाई करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। सिंप्लीफिकेशन आपके अपने मन पे है, आप जितना उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं करें, जितना सिंप्लीफाई करेंगे उतनी एक्यूरेट आपकी x या y की वैल्यू आएगी। एंड दिस इज द सॉल्यूशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ओके। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 6.9। 2x minus 3y is equal to 6. 2x minus 3y is equal to 6. And 3x plus 5y is equal to 0. 3x plus 5y is equal to 0. And we have to make coefficient same. हमने कोफिशिएंट सेम बनाना है, ठीक है। अब आप देखें इसमें और मुझे बताएं कि x के कोफिशिएंट को सेम किस तरह बना सकते हैं, और y के कोफिशिएंट्स को अगर आप बनाना चाहते हैं तो उनको किस तरह से बना सकते हैं। Here the coefficient of x is 2 and the coefficient of y in the x in the second equation is 3. 2 को 3 नहीं बना सकते, 3 को 2 नहीं बना सकते। जब ऐसे सिचुएशन आ जाती है आपके पास तो फिर आप उनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बना लेते हैं, ठीक है। 2 और 3 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 6, तो हम इन दोनों को 6 बना सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप y को बनाना चाहते हैं तो 3 को y नहीं बना सकते, 5 को 3 नहीं बना सकते, देन यू विल मल्टीप्लाई बोथ 3 with 5 and 5 with 3 to make the coefficient same। अब आप मुझे बताएं कि इसमें x के कोफिशिएंट्स को सेम बनाया जाए या y के। I am thinking that x तो हमने अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में किया, इसमें मैं y के कोफिशिएंट्स को सेम बनाती हूँ, ठीक है। ये आपके अपने मन पे है, आप किसी भी कोफिशिएंट को सेम बना लें, योर आंसर विल बी सेम, ओके। सो मल्टीप्लाई टू मेक द कोफिशिएंट्स ऑफ y सेम, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 से, एंड इक्वेशन 2 with इक्वेशन 2 with 3, ओके। चलो इस इक्वेशन को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। 5 2 times 10x minus 5 3 times 15y is equal to 5 6 times 30, okay, this is equation next 3 सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 3 से। 3 3 times 9x plus 15y is equal to 0. This is your equation number 4. Okay, what is the next step now? Second step आपका क्या था, to eliminate। जो आपने कोफिशिएंट को सेम बनाया है आपने उसको इलिमिनेट करना है। टेल मी, हमने कौन सा कोफिशिएंट सेम बनाया है यहाँ, y, गुड। और उसको हम सेम किस तरह से करेंगे, सॉरी सेम तो हो गया है ना, अब उसको इलिमिनेट कैसे करना है, बाय एडिंग और बाय सब्ट्रैक्टिंग। इक्वेशंस दोनों आपके पास है, थर्ड एंड फोर्थ, एंड टेल मी कि हम एडिशन के थ्रू उसको इलिमिनेट करें या फिर सब्ट्रैक्शन के थ्रू। इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस 2 इक्वेशन, 10 minus 9 1 minus 15 minus 15 30, कोई कोफिशिएंट खत्म नहीं हो रहा। But if I add 10 plus 9 19 and 15 minus 15 0, so add equation 3 and 4, okay, इनको ऐड करें। 10x minus 15y is equal to 30 and 9x plus 15y is equal to 0. 10 plus 9 यहाँ लिखते हैं आपके, यू आर एडिंग 19x, ये तो खत्म ही हो गया, 0 हो गया, इज इक्वल टू 30, ओके। 19x इज इक्वल टू 30
and the value of x is 30/19. 30/19. इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज लीव इट. ठीक है, दिस इज योर वैल्यू ऑफ x. नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन. जी मुझे बताएं कौन से इक्वेशन में पुट करें हम. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी 30 और 19 सिंप्लीफाई हो सकते हैं? नो. देन टेल मी कि हम इसको कौन सी इक्वेशन में पुट करें. इट्स योर ऑन चॉइस, किसी भी इक्वेशन में आप पुट करवा लें इसको. आई एम गोइंग टू पुट इट इन इक्वेशन 2. ओके, क्योंकि उसमें 0 है राइट साइड पे, तो हम थोड़ी सी कैलकुलेशन से बच जाएंगे. ओके, पुट इट इन इक्वेशन 2. ओके, व्हाट इज इक्वेशन 2? 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0. मैंने इसको क्यों चूज किया है? क्योंकि इसमें राइट साइड पे 0 है, तो हम थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है उससे बच जाएंगे, वरना हमें ये हमारे पास जो है फ्रैक्शनल फॉर्म में है और इसको हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. 3x हमारे पास क्या आएगा? 30/19 इन प्लस 5y इज इक्वल टू 0. ओके, अब आपने इसको सॉल्व करना है. कैसे करेंगे सॉल्व? 3 × 30 इज 90/19 प्लस 5y इज इक्वल टू 0. अब इस 19 को जब हमने डिनोमिनेटर से खत्म करना है तो हम इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 19, इस 19 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया और इसके साथ भी. जब 19 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 9 5 10 45, ठीक है, एंड 5 and 95 इज इक्वल टू 0. y यहां ऐसे ही आ गया. और अब आप यहां से y की वैल्यू निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल 90 प्लस 95y इज इक्वल टू 0 है आपके पास. 95y इज इक्वल टू -90. ये मैंने इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया है. अब आप क्या करेंगे? y की वैल्यू निकालनी है. -90/95. अगर ये सिंप्लीफाई होते हैं तो इनको करें, अदरवाइज लीव. और ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं ना, तो इट मीन्स कि आपने इनको करना है. ठीक है, जब सिंप्लीफाई हो रहे होंगे तो वो आपने करने मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म आपने लिखनी है. ओके, सो दे आर सिंप्लीफाइंग, तो मैं इनको सिंप्लीफाई करती हूँ. और ये किस टेबल के साथ सिंप्लीफाई हो रहे हैं? सॉरी, यहाँ आएगा y इज इक्वल टू -90/95. 5 पे जब हम करेंगे तो 5 1 times 5 and 5 4 times 20/5 1 times 5 and 5 9 times 45. So this is the value of y. Minus will remain as it is, -14/19. This is the value of y and the value of x is 30/19. Okay, so this is the method of equating coefficients. आप इन दोनों आंसर्स को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में. फर्स्ट में आप लिखेंगे x की वैल्यू 13/90 इंटू 14/19. दिस इज ऑर्डर पेयर. ये आपको पता है कि ऑर्डर पेयर जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो लिखते हैं, ये वही ऑर्डर पेयर है. इस तरह भी आप लिख सकते हैं इसको. ओके, सो अब हम इसको समराइज करते हैं अपने मेथड को. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया? इक्वेशंस को कोफिशिएंट्स को सेम बनाया. कोफिशिएंट्स को सेम बनाने का मेथड क्या है कि आपने देखना है कि आप किस कोफिशिएंट को सेम बना सकते हैं. x के कोफिशिएंट्स को सेम बना सकते हैं या y के कोफिशिएंट्स को सेम बना सकते हैं. ठीक है, उसके बाद जब आपने सेम बना लिया बाय मल्टीप्लाइंग, तो फिर आपने देखना है कि जो कोफिशिएंट आपने सेम बनाया है उसको इलिमिनेट कैसे करना है. ठीक है, मैं यहां अगर थोड़े से स्टेप्स को जनरलाइज करके लिख दूं कि फर्स्ट स्टेप इज टू मेक कोफिशिएंट सेम. फर्स्ट स्टेप इज टू मेक कोफिशिएंट सेम. सेकेंड स्टेप क्या है फिर आपका?
उन कोफिशिएंट्स को इलिमिनेट करना है। इलिमिनेट सेम कोफिशिएंट्स। जब एक कोफिशिएंट आपके पास इलिमिनेट हो जाएगा तो आपने वहां से दूसरे फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। एक तो आपके पास वेरिएबल इलिमिनेट हो गया क्योंकि उसके कोफिशिएंट खत्म हो गए, तो दूसरा जो वेरिएबल है आपने उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। और लास्ट स्टेप क्या होगा, पुट दिस वैल्यू इन एनी इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरिएबल। ठीक है, these are the steps of method of equating the coefficients. ओके, सबसे पहले आपने कोफिशिएंट्स को सेम बनाया, देन आपने इलिमिनेट किया, देन आपने वैल्यू फाइंड आउट की और इस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट कर दी। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। नाउ डू एक्सरसाइज 6.9 क्वेश्चन नंबर 1 एनी टू पार्ट्स in your copies to make your concept clear, and this exercise is included in your papers. Okay, so do exercise 6.9 question number 1, 2, 3, 4. There are 6 parts and I have done 2 parts in the board, and rest of the 4 parts you will do it in your copies. Okay students, thank you.